নমস্কাৰ অল লিডাৰ্ছ। আজি সন্ধিয়া মিটিঙত উপস্থিত সকলো লিডাৰ্ছলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ সকলোৰে আপলাইন দিল্লীৰ পৰা ডক্টৰ বিনোদ বুগালিয়া ছাৰলৈও মই বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যাতে সকলোৱে তেওঁৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰে তাৰে আশা কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় আমি আগুৱাই যাম। আমাৰ আপলাইন গুৰুসকলক আমি কপি কৰিবলৈ, তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। চ' থেংক ইউ অল লিডাৰ্ছ। হেল্ডি ইণ্ডিয়া, বিউটিফুল ইণ্ডিয়ানছ। Motto of Atomy: cherish the spirit, create a vision, follow the faith, serve in humility. এটমিৰ মূল মন্ত্ৰ: আত্মাক লালন কৰক, দৃষ্টি সৃষ্টি কৰক, বিশ্বাস অনুসৰণ কৰক, নম্ৰতাত সেৱা কৰক। সেয়াই হৈছে আমাৰ এটমিৰ মূল মন্ত্ৰ আৰু এই উদ্দেশ্য কৰি আমি সকলোৱে আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু প্ৰডাক্ট ইউজ এণ্ড শ্বেয়াৰ কালচাৰ আমি জীয়াই ৰাখি আছোঁ। চ' এটমিত যিদৰে সকলো লিডাৰ্ছ আজিৰ পৰ্যন্ত সফল হৈছে, অনাগত দিনত সকলোৱে সফল হ'ব পাৰিব তাৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, আমাৰ আগ্ৰহ আছে। চ' শিক্ষা সফলতাৰ মূল চাবি। আহক শিকো, নিজকে গঢ়ো, জীৱন সলাও। এটমিত জীৱন সলাব পৰা সম্পূৰ্ণ এটা দিশ আছে, যিটোত আগুৱাই গ'লে আমি সকলোৱে সফল হ'ব পাৰিম আৰু আমাৰ জীৱন সলাব পাৰিম। নমস্কাৰ প্ৰিয় এটমিয়ান বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীমতী কেশন দত্ত শদিয়াৰ পৰা আজি সন্ধিয়াৰ মিটিংখনলৈ নপুৰণি সকলো সদস্যাক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সকলোকে সঠিক সময়ত প্ৰশিক্ষণত উপস্থিত থাকিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। আজি তাৰিখ 27 জুলাই 2026, সময় সন্ধিয়াৰ 7টা বজাত। সময়সীমা এঘণ্টা আছে, তথাপিও আমাৰ সময় আগপিছ হৈ যায়, তাৰ বাবে মাৰ্জনা কৰিব। আৰু মিটিঙত আমি বহুত কথা কওঁ, কাৰোবাৰ কিবা বেয়া লাগে ভাল লাগে এইখিনি মাৰ্জনা কৰিব। আজি আমাৰ বাবে এক বিশেষ সুখবৰ, বিশেষ অতিথি, স্পেচিয়েল গেষ্ট শ্বাৰণ ৰোজ মাষ্টাৰ ডক্টৰ বিনোদ বুগালিয়া ছাৰ দিল্লীৰ পৰা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেওঁ আজিৰ মিটিঙত বিশেষভাৱে যোগদান কৰি আমাক সফলতাৰ দিশ আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্ৰেৰণাৰ দিশ নিৰ্দেশনা আৰু মূল্যৱান মটিভেশ্যন আগবঢ়াব। সকলো সদস্যই এই সুবৰ্ণ সুযোগৰ সম্পূৰ্ণ লাভ ল'বলৈ সময়মতে উপস্থিত থাকিব। আজি আপোনাৰ বিষয়সমূহ, আলোচনাৰ বিষয়সমূহ আমাৰ মাজত আছে। এটমিৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে বিতংক আলোচনা আমাৰ মাজৰ গ্ৰেট এক্টিভ লিডাৰ শ্ৰী আলালুদ্দিন আহমেদ ছাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা আলোচনা আগবঢ়াব। লগতে নতুন আৰু পুৰণি সকলো সদস্যৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াব। নেক্সট হৈছে আমাৰ মিটিঙৰ ফিডবেক, ফলাফলসমূহ এজন সদস্যৰ পৰা আমি মন্তব্য ভাগ বতৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে মিটিং ভংগ। একতাই শক্তি, একতাই সফলতা। সময়মতে জইন কৰক, শিকক, নিজকে গঢ়ক আৰু সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়ক। ধন্যবাদ। উই লাভ এটমি ইণ্ডিয়া। सो एकता में ही ताकत है, एकता में शक्ति है। सो हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम कामयाब होंगे। सो थैंक यू ऑल लीडर्स। এতিয়া মই আমাৰ মাজৰ চিনাকি परिचयটো দিছোঁ। तो मैं अभी हमारे सभी मेंबर्स का परिचय कराते हुए सभी का मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। सो हमारे ये मीटिंग का डिसिप्लिन है कि हम सभी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन कराते हैं और जो नए मेंबर्स आते हैं हमारे जो रेगुलर मीटिंग से मंडे टू सैटरडे, उनका हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो आज मैं सभी का परिचय कराती हूँ हमारे अपलाइन से। हमारे बीच में है अब्दुल मन्नान सिद्दीकी सर बंगाईगांव से, और नेक्स्ट है एजेंट अमजद अली सर CRPF से, मणिपुर से। देन हमारे पास है एजेंट लक्ष्मण बरुआ सर सदिया असम से, जो कि मेरा होम टाउन है। सो नेक्स्ट हमारे बीच में है, अभी जस्ट प्रेजेंट हुए हमारे बीच में आए हैं माइनुल हक सर। माइनुल हक सर उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। सो नेक्स्ट Hi. है
हाँ, थैंक यू सर। और नेक्स्ट है हमारे बीच में एजेंट मृदुल सोनवाल सर, तिनसुकिया से, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से। और नेक्स्ट हमारे बीच में है एजेंट फुकन चंद्र दास सर, रंगिया से। और हमारे बीच है एक्टिव लीडर अनिरुद्ध राभा सर, ग्वालपाड़ा से। अंजलि कटकी मैम, ग्रेट एक्टिव लेडी लीडर, गुवाहाटी से। नेक्स्ट है हमारे बीच एटमी एजेंट मीना नाथ मैम, नलबारी से। और वे एक बहुत ही डायनेमिक लेडी लीडर है और अपना टीम बखूबी संभाल रही हैं। तो इन फ्यूचर हम उनको बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और विश्वास है अच्छा काम करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे बीच विश्वनाथ बुरागोहाई सर, सदिया से। सदिया से सर भी एक एक्टिव लीडर हैं। और हमारे बीच है हमारे सभी के अपलाइन मेंटर दिल्ली से डॉक्टर गौतम सर, डॉक्टर विनोद पुगलिया सर, उनका नाम यहाँ पे डॉक्टर गौतम करके आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे बीच यासिन अली सर। ओके, यासिन अली सर प्लीज আপোনাৰ স্পিকাৰটো অন কৰিব আৰু চিনাকিটো দিব ক'ৰ পৰা আহিছে। यासिन अली सर, হয়, কোনে ইনভাইট কৰিছে জনাব অকমান। यासिन अली सर, আপোনাৰ স্পিকাৰটো অন কৰিব পাৰিব। ओके, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। यासिन अली স্যার মাইক্रोफोनটো অন কৰিব পাৰিবনে? यासिन अली স্যার, আপুনি স্পিকাৰত চাওক, আপোনাৰ মোবাইলত স্পিকাৰ অপশনটো অন কৰি দিয়ক। হয়, यासिन अली স্যাৰে হয়তো অলপ সময় লৈছে, গতিকে মই তেখেতক ওয়েলকাম জনাইছো। হয় স্যার, তেখেতে ক'ৰ পৰা কৈ আছে জনাব। আমজাদ আলী স্যার। হয়, তেখেত আমাৰ এই বঙাইগাঁও গাঁও চাকলা বৰ্তমান এই মণিপুৰত কোচিং আছে, চিআৰপিএফত সাৰ্ভিস কৰে। ওকে, তেওঁ হয়তো বিজি আছে, এইটো কাৰণে মাইকটো অন কৰিব পৰা নাই। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। হয়, আমি ইয়াসিন আলী ছাৰৰ লগত আকৌ কথা পাতিম নেক্সট। চ' তেখেতেও মণিপুৰৰ পৰা আহিছে। চ' নেক্সট আছে আজি आज हमारे बीच है एक्टिव लीडर गीतिका नाथ मैम, कामरूप गुवाहाटी से। नेक्स्ट है हमारे बीच हेमचंद्र कुंवर सर, सतिया से। और हमारे बीच है एक्टिव लेडी लीडर कविता दत्ता मैम, जोरहाट से। हमारे बीच है एक्टिव लीडर मीनू दत्ता मैम, सदिया से। और हमारे बीच है मुनदास सर, नलबारी से, एक्टिव लीडर हैं। नेक्स्ट है हमारे बीच एक्टिव लीडर नीरू प्रभा गोगोई मैम, सदिया से। और हमारे बीच है एजेंट फणीधर शेटिया सर, सदिया से। नेक्स्ट है हमारे बीच एक्टिव लीडर पिंकू महंत सर, सदिया से। और हमारे बीच है एक्टिव लेडी लीडर रेबिका भूया मैम, उनका मैं एड्रेस भूल गई। ओके, रेबिका भूया मैम, अपना एड्रेस तो কৈ দিব। हेलो, वेलकम मैम। रेबिका भूया मैम, আপুনি গুৱাহাটী হৈছিলে নেকি? हेलो, रेबिका भूया मैम, মেম চাগে ব্যস্ত হয়, কোনোবাই জনাব নেকি? মীনা নাথ মেম, ৰেবিকা মেম গুৱাহাটীৰ হৈছে নেকি? মই তেনেকুৱা লাগিছে, পাহৰিছো অলপ, এড্ৰেছটো জনাই দিয়ক। গুৱাহাটী, ওকে, থেংক ইউ। হয়, নেক্সট আহিছে ৰিজে পহুখোৱা। ৰিজে মেম হয়নে ছাৰ? হয়, পহুখোৱা, ফ্ৰম পহুখোৱা, सदिया। पहुखुआ सदियाते আছে, सदिया से है पहुखुआ। रिजेश पहुखुआ मेम হয়নে ছাৰ? হয়, প্লিজ ৱেলকাম। আপোনাৰ স্পিকাৰটো অন কৰিব পাৰিবনে? হেল্ল', হেল্ল', ৰিজে পহুখুৱা। আই থিংক ত্ৰলোক্ষ বৰুৱা ছাৰ আপুনি ইনভাইট কৰিছে নেকি? হেল্ল', ৱেলকাম ত্ৰলোক্ষ বৰুৱা ছাৰ। হেল্ল' মেম, হয় হয়, আপুনি ইনভাইট কৰিছে নি? ৰিজে পহুখুৱা বুলি এজন আহিছে। নিজে পুৱা মেম মই চিনি মেম নাপাওঁ। মই কৈছিলো মানে নামটো বেলেগ ওকে, নাম্বাৰ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে পহুখুৱা। ओके, ठीक है सर, लक्ष्मण बोरा सर, थैंक यू। और विजय पहुखा सर है, ये हमारे सदिया से बिलोंग करते हैं, इनको लक्ष्मण बोरा सर ने इनवाइट किया, तो हम इनसे फिर से मिलेंगे। हमारे बीच है एक्टिव लीडर त्रलोखा बोरवा सर, सदिया से। तो हमारे बीच में फिर से आए हैं एजेंट लक्ष्मण बोरवा सर, तो उन्होंने नए मेंबर्स को भी इनवाइट किया है, जो कि हमारा कल्चर है। हम नए मेंबर्स को इनवाइट करते हैं मीटिंग में और उनको काम सिखाते हैं और एटमी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं सारा और समझते हैं।
अभी अभी हमारे बीच फिर से आए कुछ लीडर्स, अभी जस्ट हमें ज्वाइन किया। तो उनमें मुनीन्द्र गोहाई सर सदिया से हैं, एक्टिव लीडर। देन गीतिका नाथ मेम ने जुनू नाथ मेमक देखा जेन लगिছিলে उलाई गल। ओके, सभी लीडर्स, आशा करती हूँ और बाकी के जितने भी लीडर्स है सभी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। एजेंट निरुप्रभा निरुप्रभा निरुपमा नाथ मैम, वेलकम। एजेंट निरुपमा नाथ मैम गौरेश्वर कामरूप से हमारे बीच में है। अच्छा लगा देख करके, मैक्सिमम एजेंट मीटिंग में प्रेजेंट है और बाकी सब लीडर्स जरूर आएंगे, इसका मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारा कंसिस्टेंसी, हमारे काम में कंसिस्टेंसी जब आएगी तभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो जब तक हम कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे तब तक हम किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ सकते। आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए। हम दो शब्द सुन पाएंगे हमारे अपलाइन को, दिल्ली से हमारे अपलाइन कैसे काम करते हैं और आप लोग क्या सीखना चाहते हैं उनसे, ऐसा जो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सिखाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। हमारे अपलाइन जब आते हैं उनसे कुछ बातें हमको सीखने को मिलते हैं, दो शब्द भी उनसे अगर सीखने को मिले तो हमें मोटिवेशन मिलता है और एक एनर्जी मिलती है, एक स्पार्क मिलता है। कब किसकी बात कहाँ पे क्लिक कर जाए ये कोई नहीं जानता, कब कौन एक्टिव हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो किसी की एक शब्द भी हमारे जीवन को बदल सकता है, तो इसका मुझे विश्वास है। आशा करती हूँ सभी लीडर्स को मोटिवेशन और आशा मिलेगी। आज की मीटिंग से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और जिस तरह हमारे अपलाइन काम करते हैं आपको जानने का मौका मिलेगा। সকলোৱে আজি শিকিব পাৰিব, বুজিব পাৰিব আমাৰ আপলাইনে কেনেকৈ কাম কৰে আৰু তেওঁ কি ভাবে এটমিক লয়, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। मैं इनवाइट करी आसो हमार डॉक्टर बुगालिया सर। मैं अभी डॉक्टर बुगालिया सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आगे आए और हमारे टीम को दो शब्द कहें। मोस्ट वेलकम डॉक्टर विनोद बुगालिया सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे मीटिंग में। और आशा करती हूँ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आप हमसे हमें थोड़ा गाइड करें, कहाँ क्या है। आप अपलाइन है, देख पा रहे हैं हमारा काम कैसा हो रहा है, तो उसके बारे में भी हमें फीडबैक दे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ, प्लीज वेलकम सर। आप हिंदी में बोल थैंक सकते यू हैं, हम लोग कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबली हम लोग समझ पाएंगे। थैंक यू केशव दत्ता मैम, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वेबिनार में। और जैसा कि आप जानते हैं कि एटमी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तेजी से उभरती हुई आगे बढ़ती हुई कंपनी है। और उसी का नतीजा था कि आपने अभी देखा पिछले महीने हमारी एटमी जो है वर्ल्ड में टॉप 7 में आ गई है, 7वें नंबर पे आ गई है, और वो भी फास्टेस्ट। तो 7वें नंबर पे आना आसान नहीं है, छोटी बात नहीं है, और वो मात्र 16 साल में और 27 कंट्री में जाने के बाद 7वें नंबर पे आना। मैं बहुत सी ऐसी कंपनी को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जिन कंपनियों को 50, 60, 70 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन वो अभी टॉप 10 में नहीं आई है। इसे हमें गर्व होता है कि हम बहुत जल्दी टॉप 10 में 7वें नंबर पे आ चुके हैं, और वो दिन दूर नहीं है। ऐसे ही हमारी कंपनी ग्रोथ लेती रही अनिल पारक सर के निर्देशन में, तो हम नंबर 1 भी होने वाले हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आवश्यकता है आपको हमको लगातार कंसिस्टेंटली काम करने की। एटमी को ज्वाइन करना एक अलग बात है, फिर उसके साथ में आगे बढ़ना
डेली रूटीन में काम करना, डेली एक दो व्यक्ति के साथ एटमी की चर्चा करना, डेली कम से कम एक या दो ज्वाइनिंग नहीं लगाना, डेली एक दो दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ या स्ट्रेंजर के साथ एटमी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को शेयर करना। और वो हम तब कर पाएंगे जब हम खुद प्रोडक्ट को यूज करेंगे। एटमी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो मेन जो ताकत है, मेन जो बेस है इस बिजनेस का, वो एटमी के प्रोडक्ट हैं। तो उन प्रोडक्टों को हम पहले यूज करें, फिर उसको एक्सपीरियंस करके, उसका अनुभव लेकर के, और फिर हम फील्ड में निकलेंगे, फिर किसी को भी बोलेंगे कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, मेरे को अच्छा लगा, मेरे में क्या रिजल्ट आया, वो आप उनको बताएंगे तो उसका असर जाएगा। हमने प्रोडक्ट को यूज किया नहीं और हम बताएंगे तो उसका असर नहीं जाएगा। कारण वो जो ऊपर वाला है ना, वो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, वो सब के अंदर बैठा हुआ है। आपने प्रोडक्ट को यूज किया नहीं और आप उसके बारे में बताना शुरू करेंगे तो अंदर से अधिकार पूर्वक आपकी वाणी नहीं निकलेगी, आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जो दूसरे के हृदय पे जाकर के छाप छोड़े, दूसरे के हृदय को झकझोर दे। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट को यूज किया है, फिर आप जो बोलेंगे वो अगला व्यक्ति सुनने को मजबूर होगा, जुड़ने को मजबूर होगा, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए वो तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं अनुभव के साथ बोलना, अनुभव के साथ बात करना। मुझे अनुभव ही नहीं है, करूंगा। कोई अचानक जो है स्कूल जाता नहीं है और उसको बोले चलो तुम स्कूल के बारे में बताओ, क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा, जो भी बताएगा वो झूठ बोलेगा। वही बात आपके हमारे ऊपर लागू होती है। हम सच्चाई के साथ एटमी को ज्वाइन करके एटमी में सक्सेस हो सकते हैं। एटमी के अंदर 3 लाख स्टेबल करोड़पति हैं जो वर्ल्ड में किसी कंपनी में नहीं है। 1,60,00,000 टोटल मेंबर हैं एटमी के अंदर, जो वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलर का 10% से ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में कितने हैं डायरेक्ट सेलर? 10,30,00,000। और अकेले एटमी में कितने हैं? 1,60,00,000, यानी 10% से भी ज्यादा एटमी में मेंबर हैं। इसलिए भूल ना करें एटमी को हल्के में लेने की। एटमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस एटमी के प्लेटफॉर्म ने कितने लोगों की जिंदगी को बदल दिया है और बदल रही है। ऐसे ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई टैक्सी चलाता था, कोई प्रेस करता था, कोई जो है और छोटा मोटा कोई काम करता था, नौकरी करता था, लेकिन वही लोग आज इंपीरियल मास्टर हैं जो 1.5 से 2 करोड़ पर मंथ कमा रहे हैं। तो आप और हम भी अगर विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ एटमी को करेंगे, निसंदेह इंपीरियल मास्टर बनेंगे। लेकिन उसके लिए जल्दबाजी नहीं करना है। उसके लिए, क्योंकि हमारा एटमी का जो बिजनेस प्लान है वो एक रात में करोड़पति बनाने वाला नहीं है। और जो एक रात में करोड़पति बनाने वाले हैं वो रास्ता कहां जाता है पता है? जेल की तरफ जाता है। वो जेल में सड़ रहे हैं। जो एक रात में करोड़पति बनाते थे वो जेल में जाके सड़ रहे हैं, कैदी बन गए। तो वो गैर कानूनी काम हमको नहीं करना है। हमें तो ईमानदारी का काम करना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को करना है, और वो भी एटमी जैसे प्लेटफॉर्म को, जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पे ईमानदारी से काम करेंगे, निसंदेह 3 से 6 महीने के अंदर सेल्स मास्टर जा सकते हैं। 1 साल के अंदर ऑटो सेल्स मास्टर जा सकते हैं। आपको पता है, मैं 11 नवंबर 2020 को एटमी इंडिया में लॉन्च हुआ। तो साइकिल महीने में 2 होते हैं। तो 11 नवंबर को लॉन्च हुई तो पहला साइकिल कितने दिन का था? 4 दिन का, क्योंकि 11 से 15
भाई 2 साइकिल होते हैं ना, 1 से 15 और 16 से एंड ऑफ द मंथ। तो 15 तारीख को साइकिल खत्म हो गया, यानी 4 दिन में। और उस 4 दिन में पता है मैंने कौन सा रैंक अचीव किया था? डायमंड मास्टर। और मेरे नीचे 25 से ज्यादा सेल्स मास्टर निकले थे 4 दिन में। और आज तक 6th ईयर अभी गोइंग है, आज तक मैं किसी भी साइकिल में मास्टरशिप से नीचे नहीं गया हूं। लगातार ऑटो सेल्स, ऑटो डायमंड, सेरेन रोज कई बार मेंटेन नहीं होता है तो डायमंड मेंटेन होगा, लेकिन मास्टरशिप से नीचे आज तक नहीं गया हूं। और आप जैसे दोस्त मेरी टीम में एक्टिव रहे तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे और मेरी तरह से आप भी कभी मास्टरशिप से नीचे नहीं जाएंगे। आपको पता है जब से कंपनी लॉन्च हुई है कोई भी ट्यूसडे मेरा खाली नहीं गया है बिना पे आउट के। यानी महीने में लगातार 6ठा साल चल रहा है, मैं 6 बार पे आउट लेता हूं लगातार। इसलिए दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, आपको जज्बे के साथ काम करना है। एटमी में टैलेंट नहीं चाहिए, एटमी में कोई डिग्री नहीं चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है डजंट मैटर, ये सब नहीं चाहिए। एटमी में केवल चाहिए जुनून चाहिए, अटल चाहिए, नेवर गिव अप चाहिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो नेवर गिव अप का संकल्प ले ले, अटल रहने का संकल्प ले लें, आप भी मेरी तरह सक्सेस हो जाएंगे। आपको पता है 2 बार साउथ कोरिया जा चुका हूं, जहां पे हमारे प्रोडक्ट बनते हैं कोलमार 2 बार विजिट कर चुका हूं, 2 बार उस हेडक्वार्टर को देख चुका हूं जिसके लिए पूरी दुनिया तड़पती है कि हम कब जाएंगे, हम कब देखेंगे। वो आर्किटेक्ट का नंबर 1 अवार्ड उसको मिला है, वो हमारा हेडक्वार्टर जिसको टोबी पार्क के नाम से जानते हैं, उसको अगर हम सही से देखें, माइन्यूटली देखें तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे, इतना बड़ा हमारा हेडक्वार्टर है। तो आप प्रयास करें कुछ अचीवमेंट का। इस बार फिर जा रहा हूं फैमिली के साथ, सितंबर में 10 दिन के लिए फिर हमारा टूर है, सक्सेस टूर फॉर साउथ कोरिया। और मैं ऐसा लीडर हूं जो लगातार 3री बार फैमिली के साथ, मैं और मेरी बेटी पूरी तरह मास्टर दोनों ने इसको अचीव है और फैमिली के साथ लगातार 3री बार साउथ कोरिया जा रहे हैं। तो ये सब संभव हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तरह से पागल हो जाओ, मेरी तरह से जुनूनी हो जाओ, मेरी तरह से नेवर गिव अप करने वाले लीडर आप बन जाएंगे आप भी। मजा आता है। साउथ कोरिया देखने लायक देश है, हमारा हेडक्वार्टर देखने लायक है, हमारे प्रोडक्ट जहां बनते हैं कोलमार वो देखने लायक जगह है। एक दिन घूमने फिरने के लिए जो है कंपनी फ्री देती है पूरा दिन कि घूमो जाओ खरीदारी करो, तो मजा आता है। हम भी चाहते हैं कि हमारी टीम से हर साल 150 लोग साउथ कोरिया चले। इस बार तो निकल गया, अगले साल फिर से जो टूर जाएगा, आज कल आज से तैयारी करो कि मुझे जाना है और नेक्स्ट ईयर के टूर में मैं साउथ कोरिया जाऊंगा। लो तो आप जा पाएंगे। आपको पता है लाइफ सिनेरियो का कॉन्सेप्ट केवल एटमी में है, पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी में लाइफ सिनेरियो लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं है। और उस लाइफ सिनेरियो को लिखने का पता क्या फायदा है, मैं 6 बुक भर चुका हूं लाइफ सिनेरियो की, उसको आप लिखेंगे कि 3 साल 3 महीने 6 महीने में मुझे क्या अचीवमेंट करना है, तो वो अवश्य पूरा होता है। मैंने लिखा कि मैं फला फला तारीख फला साल में मेरा 3 BHK मकान लूंगा और मैं ले चुका हूं।
24 अगस्त 2025 को मैं मेरा 3 BHK 1600 स्क्वायर फीट का ले चुका हूं और उसको रेंट पे चढ़ा दिया है। अभी मुझे 20,000 रुपए रेंट आ रहा है। देखिए, लाइफ सिनेरियो में लिखा था, पूरा हो गया। एटमी से इनकम अलग, और एटमी से इनकम जो कमाया उसे 3 BHK लेकर के रेंट पे चढ़ा दिया और 20,000 रुपए की इनकम एक्स्ट्रा आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि एटमी है ना। अगर एटमी नहीं होती 3 BHK नहीं ले पाता, 3 BHK नहीं ले पाता, 20,000 का रेंट नहीं आता, साल में 2,40,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो गई। किसके कारण से? एटमी के कारण से। इसलिए दोस्तों, आप एटमी को ईमानदारी से करो, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे पास पहले टाटा नेक्सॉन गाड़ी थी। अभी 3 जुलाई को, इसी 3 जुलाई को टाटा सफारी लेकर के आया हूं 26 लाख की। किससे हुआ? एटमी के कारण से। इसलिए आप जो लिखेंगे लाइफ सिनेरियो में, आपको क्या चाहिए, वो आपका अवश्य पूर्ण होगा। अनिल पारख सर कहते हैं, लाइफ सिनेरियो में जो लिखेगा वो अवश्य ही पूर्ण होता है। किसी का 50%, किसी का 80%, लेकिन हो के रहता है। तो आप लाइफ सिनेरियो लिखिए। आप कब स्पेशल एजेंट जाएंगे, आप कब सेमी सेल्स या सेल्स मास्टर जाएंगे, आप कब ऑटो सेल्स मास्टर जाना चाहते हैं, आप कब, कौन से साल में, कौन से साइकिल में डायमंड जाना चाहते हैं, लिखिए। आप लिखेंगे, जरूर ऊपर वाला सुनता है। लिखिए और उसके ऊपर फिर काम करिए, फील्ड में निकलिए, तो आपकी बात को भी सुनेगा। एटमी जैसा इजी टू डू कोई बिजनेस है ही नहीं। इतना आसान है कि बस केवल 2 लेग पे टीम बिल्डअप करना है। 2 लेग पे अगर आप डेली निकलेंगे तो 2 लोग आपको रोज मिलेंगे, नहीं निकलेंगे तो साल में भी नहीं मिलेंगे। डेली निकलिए, 2 लोग मिलेंगे, 2 लोग मिलेंगे, वो 2 भी 2-2 लेके आएंगे, फिर वो 4 फिर लेके आएंगे। ऐसे करते करते अगर ये आपने 1 साल कर दिया तो आपकी इतनी बड़ी टीम हो जाएगी, कई हजार की टीम हो जाएगी। और बड़ी टीम, बड़ा अचीवमेंट, बड़ी टीम, बड़ी इनकम, बड़ी टीम, बड़ा लीडर। जिसके पास टीम है वही लीडर होता है, बिना टीम के कोई लीडर नहीं होता। इसलिए दोस्तों, टीम बिल्डअप करिए, टीम बनाइए। टीम के साथ लीडर होता है, बिना टीम के कुछ नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता। आज अगर मैं अपने आप को लीडर बोलता हूं तो आप मेरे साथ हैं ना। तो ऐसी ही टीम आप भी बनाइए जो कल आपके साथ रहेगी। आप भी लीडर कहलाएंगे, आप भी बड़े बड़े अचीवमेंट लेंगे, आप भी साल के 30 लाख 50 लाख रुपए कमाएंगे। तो आवश्यकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस की, प्रोडक्ट को यूज करने की, और फिर उसको फील्ड में जाकर के लोगों को बताने की। बस इतना ही तो करना है, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है जो आप चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि लाइफ सिनेरियो आप सब रखें, सबके पास लाइफ सिनेरियो होना चाहिए। 150 रुपए की बुक है, आज ही ऑर्डर करें वेबसाइट पे जाकर के और उसको लिखना शुरू करें। देखना आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, आपके अचीवमेंट आने शुरू हो जाएंगे, वो आपके पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। उस बुक के अंदर ऐसा जादू है कि आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं भी सोचता था क्या लिखूं, जब लिखने लगा तो सबसे ही विचार आने लगे, ये लिखो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उनमें से मेरा 50% तो पूरा हो चुका। क्या चाहिए? रोटी कपड़ा का मकान चाहिए, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ये सब चाहिए, देश विदेश घूमने को हो, ये सब हो रहा है। अभी तो सेरेनोज मास्टर हूं, उसी में सब कुछ हो रहा है। बढ़िया लग्जरी गाड़ी आ गई, अच्छा मकान हो गया, और देश विदेश घूम रहे हैं। तो सपने पूरे होते हैं एटमी में। तो दोस्तों, किसी के भी गुटबाजी में मत आइए। राजनीति नहीं करने आए हम। एटमी राजनीति और गुटबाजी करने का
विषय नहीं है। राजनीति और गुटबाजी के लिए दुनिया बहुत है, यहाँ पे अचीवमेंट के लिए आए हैं, यहाँ अपनी थर्ड जनरेशन को बदलने के लिए आए हैं। अप टू थर्ड जनरेशन इतनी इनकम हो कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाएं, टाइम की फ्रीडम पा जाएं और पूरी दुनिया घूमें। हम इसके लिए एटॉमी में आए हैं। एटॉमी में गुटबाजी और राजनीति करने नहीं आए, ये करना है तो दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ ईमानदारी से काम करें, मिलजुल के काम करें, काम करें, हम सब सक्सेस हो जाएंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीक में फिर आऊंगा आपकी सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद केशव दत्ता मैम, आपने मुझे बुलाया। आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार से सुना। और एवरी वीक मैं अवश्य आपकी सेवा में आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर जी। सर जी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार वीडियो ऑन करके आप आपका फेस दिखा दीजिए ताकि सब लोग आपको देख पाए। फोटो में तो आपको सब लोग देखते हैं, रियल में भी सबको देखने से ज्यादा और प्रोत्साहन मिलेगा। जी थैंक यू। সকলে চাই লওক, আমাৰ বিনোদ বুগালিয়া ছাৰ হয়। सर जी, आपका फुल फेस नहीं आया है। हाँ जी, সকলে দেখিছে? ठीक है, थैंक यू सर जी। और मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, 2-4 और समय हमें दीजिए। हमारे कुछ लीडर्स ने हैंड राइज किया है, उनको कुछ आपसे पूछना है, तो रोज अच्छा रोज अच्छा तो अच्छा ये अच्छा, मौका ठीक है, नहीं 5 मिलता मिनट है। 5 मिनट 5 मिनट हाँ जी सर। 5 मिनट, हाँ पूछिएगा पूछिए। ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारे लीडर हैं हमारे बीच फुकन चंद्र दास सर। हाय, वेलकम फुकन सर। হয়, আপুনি হয় হিন্দীত ক'ব পাৰে, অসমীয়াত ক'ব পাৰে, নহলে মই ট্ৰান্সলেট কৰি দিম ছাৰলৈ। आपके साथ बात किया मीटिंग में फिर आज हम लोग का इसमें डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर होकर भी एटॉमी में काम करके बहुत अच्छा काम किया आपने। इसके लिए हम लोग का एक बहुत आनंद प्राउडफुल होता है। सर, मेरा डायरेक्ट एक क्वेश्चन है ऐसा, तो एक लड़की जिसका साल है 12-13 साल, लेकिन उसका जो ब्रेन है, उसको जो काम है 2 साल जैसा बच्चा जो काम करता है ऐसा है। ब्रेन में जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करता। तो 2 साल लड़का लड़की जो जैसा है ऐसा ही होता है, लेकिन ग्रोथ अच्छा है, ब्रेन में काम नहीं किया, ऐसा होता है। वो उसको चेन्नई में ले जाने के लिए परियाल में ठीक किया। आज मैंने मुझको पता चला ऐसा ऐसा हुआ, तो इसलिए जानना चाहता हूँ। चेन्नई में जाने के लिए तो उन लोगों ने ऑलरेडी टिकट किया, तो वो जो मेरा ऐसा मेरा मन में ऐसा आता है, वो जो भी मेडिकल में रहेगा उसका जो रिजल्ट है अच्छा रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म में रिजल्ट मिल सकता। तो सर, आप आने से बहुत अच्छा, ये जो प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए सर? जी सर, उनका कहना है कि एक बच्चा है जिनका अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ब्रेन जो है मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? एटमी में कोई इसका प्रोडक्ट है क्या उनके लिए, जो अभी उनको एज मतलब इन्होंने शायद बेनिफिट मिले? उसका एज 12 साल बताया ना? हाँ जी। ফুকন ছাৰ, কিমান কৈছে বয়সটো? हाँ 12 जी, বছৰ নে 12 साल? यस, 12 साल, अच्छा, 12-13 उसका साल। उसका कोई कोई रिपोर्ट वगैरह हुआ है क्या? मेडिकल गुवाहाटी रिपोर्ट मेडिकल में सर दिखाया है, उन लोग का मैंने ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए चेन्नई में जाने के वो किया है, ऐसा किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि उस बच्ची को ओमेगा 3 आप एक कैप्सूल सुबह शाम देंगे।
खाने के बाद। स्पिरुलिना 1 हाँ कैप्सूल जी। सुबह शाम देंगे खाने के साथ साथ। मोरिंगा 1 कैप्सूल देंगे सुबह शाम खाने के साथ। और हेमोहिम का 1 पाउच सुबह 1 शाम को देंगे। और उसकी रिपोर्ट मुझे भेजना एक बार, है ना। और कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, केशवर मैम को मैं वीडियो कॉल करके वो बता दूंगा एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज उससे कराना है, वो प्राणायाम उससे करवाना है, और साथ में ये सब खिलाना, लगातार 4-5 महीने खिलाना। उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्ट मुझे भेजेंगे तो उसके बाद मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है सर, बहुत जी जी, अच्छे। थैंक यू। मैं आपको जरूर बातचीत करूंगा, मैसेज करूंगा, फोन करूंगा, सब रिपोर्ट दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। लेकिन हम काम ठीक करना रहेगा। चाहता हूँ, सफल बनना चाहता हूँ सर। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इसलिए एटमी। ये, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है सर। हाय, थैंक यू फुकन सर। थैंक यू सर जी। अभी नेक्स्ट हमारा मुजफ्फर अली सर ने हैंड राइज किया है, और 4 लोगों ने हैंड राइज किया है। सेकेंड हमारा नेक्स्ट है मुजफ्फर अली सर। হয় মুজাফৰ আলী ছাৰ, ৱেলকাম। আপুনি কিবা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে ছাৰক? जी जी। হেল্ল'। হয় হয়, welcome। गुड गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कैसे हैं मुजफ्फर जी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जी, आप ऊपर बात वाला रखें। सही रखें। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये, जो मेरा बात सुन रहे हैं ना सर? जी जी। ठीक। मेरा पहला बात ये है सर, सर एक शुगर पेशेंट को मैंने प्रोडक्ट दिया था, तो उनका मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उसको दिया था प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और यूज़ किया है और कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है उसको। तो उसका कोई खाने का प्रॉब्लम है क्या? मैंने उनको दिया था, हिमोहिम दिया था, और ओमेगा 3 और अरबिका ब्लैक कॉफ़ी और मिल्क क्रिस्टल, ये 4 प्रोडक्ट दिया है। जी 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 जी। देखिए, एक तो बात बताता हूँ मैं आपको कि डायबिटीज जैसा, शुगर जैसा रोग, उसमें हिमोहिम आप देंगे तो 2 महीने तक आपको लगेगा कि डायबिटीज बढ़ रहा है। 2 महीने के बाद फिर लगेगा कि हाँ अब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन 2 महीने तक बढ़ेगा। इसलिए कंटिन्यू देना है, घबराना नहीं है। साथ में आपने बोला मिल्क थिसल, ओमेगा 3 और ब्लैक कॉफी बेस्ट है। साथ में न्यूट्रास्यूटिकल ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं। खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, उनको मीठी कोई चीज बिल्कुल नहीं लेनी है, चावल और गेहूं बिल्कुल नहीं खाना है। तो क्या खाना है? उनको सलाद खाना है 4-5 तरह का भरपेट। उनको हरी सब्जियां खानी है बिना तली पली। उनको हरी सब्जी बॉयल करके खानी है। जितना वो सलाद और हरी सब्जियां बॉयल करके खाएंगे, उतना जल्दी उनको कंट्रोल होगा। अगर खान पान को चेंज नहीं किया तो कुछ भी खिलाने से उनको आराम नहीं आएगा। 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, 2.5 से 3 लीटर पानी पिएंगे, तब जाके ये कंट्रोल होगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए उनका खान पान को चेंज कराइए तुरंत। जैसा मैंने बताया वैसा कराइए। गेहूं चावल बिल्कुल बंद करिए। वो ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन, चौलाई, ये आटा मिला के रोटी बना के खा सकते हैं, लेकिन गेहूं और चावल जब तक नहीं छोड़ेंगे डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। और হয় दूसरे एक হয় মুজাফৰ ছাৰ, হয় হৈছেনে? दूसरा ক্লিয়াৰ হৈছে? हेलो। হয় হয় ओके, হয় ঠিক আছে স্যার। सर, थैंक और दूसरा एक क्वेश्चन था।
হয় আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে ছাৰ? হয় স্যার, হয় হয়, ম্যাম, मैं और এটা আপুনি কন্টিনিউ কৰক। হয় सर जी, और दूसरे एक क्वेश्चन था मेरा, जी वो ऐसा है जो लोगों का जो सफेद का बीमारी होता है, स्किन स्किन में जो सफेद बीमारी होता है, जी तो उसके लिए मैंने हिमोहिम और मिल्थिस्टल और ओमेगा 3 और टूथपेस्ट दिया था उनको मालिश करने के लिए, और बॉडी क्लींजर दिया था उनको नहाने के लिए। तो आज 4 महीना हो चुका है। तो मतलब पहले जिसको दिया था वो एक आदमी का कम्प्लीटली ठीक हो गया है, तो दूसरे एक को दिया है वो 4 महीना हो गया है, अभी तक उसका कोई परिवर्तन नहीं दिखा है। सर उसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, जिसको भी ये लिकोडर्मा बोलते हैं, इसको सफेद दाग का रोग, ये हमेशा खान पान जो है उल्टा सीधा खान पान खाने से ही बीमारी होती है। जैसे दूध के साथ नमक खाना, दही खाना, खीर खाना लेकिन साथ में दही भी खाना, लस्सी भी खाना, मच्छी खाना और दूध भी पीना, तो उससे हो जाता है। तो उसको कहो कि खान पान को बिल्कुल चेंज कर दे, केवल हरी सब्जी फल फ्रूट पे लेके आए, कुछ दिन सफेद चीजें खानी बंद कर दे, चावल, आटा, दूध, दही, सफेद चीजें कुछ दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दे, और ये सप्लीमेंट ले, हिमोहिम ले लगातार, ओमेगा 3 ले लगातार, मोरिंगा ले, मिल्क थिसल ले, तो उनको जरूर आराम आएगा, उनकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन खान पान को नहीं सुधारा, रोग क्यों आते हैं? खान पान की गड़बड़ी से आए ना, और उसी को सुधारा नहीं तो फिर ठीक नहीं होंगे। तो खान पान को सुधार करके इन सप्लीमेंट को लेंगे तो जरूर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर, इतना बताने के लिए सर। मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को इतना बोलने के लिए। थैंक यू सर। হয়, থেংক ইউ। क्वेश्चन मैम कंटिन्यू करो। হয় হয়, थैंक यू। হয়, नेक्स्ट আছে पिंकू महंता सर जी है, उन्होंने हैंड राइज किया है। হয়, পিংকু মহন্ত ছাৰ, আপুনি স্পীকাৰ অন কৰক, ছাৰৰ লগত আপুনি কথা পাতিব পাৰিব। হেল্ল' ছাৰ, পিংকু মহন্ত ছাৰ। হয় 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 হয়, মেম, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কওক। হয় মেম। गुड इवनिंग गौतम सर। हाँ गुड इवनिंग, बताइए ममता जी। है और आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। পিংকু ছাৰ, আপোনাৰ নেটৱৰ্কটো প্ৰব্লেম আছে নেকি? আপোনাৰ ভইচটো ব্ৰেক হৈ আছে। হেল্ল' পিংকু ছাৰ। हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो আগতে अभी आवाज কোৱাখিনি सर, आया। শুনা मेरी নাই, এতিয়া আহিছে মাতটো, আগতে অহা নাছিলে। আগতে অহা নাছিলে, আপুনি অকমান নেটৱৰ্ক থকা জেগাত আহক। এতিয়া আহি আছে, এতিয়া ক'ব পাৰে। गुड इवनिंग सर। मेरा अपलाइन फणीधर सेठिया सर और किशन दत्त मैम है सर। मेरा नया ज्वाइनिंग है, मोटा मोटी जितना दिन हुआ आज काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिला है हमको सर, आपका द्वारा, और साहस भी मिला है आज 2 बात सुन के आपसे, बहुत अच्छा लगा सर। नया नया में हम लोग थोड़ा कठिन होता है कोई भी चीज़ समझने में या समझाने में, और बीमारी का मतलब आदमी तो बीमारी बहुत ऐसा है कि कोई बोल नहीं सकते हैं कि कैसे क्या होगा। लेकिन अभी मेडिसिन जो अपना एक कोलगेट यूज़ कर रहा था सर, तो उसको अभी हमारा खुद यूज़ में हमको तो अच्छा ही रिजल्ट मिला है। तो सबसे पहले बात है कि 2 पेशेंट हमको मिला है, उन लोग ने हमको बोला है कि दवाई अगर आपका सही ठीक होगा तो हम यूज़ करेंगे। तो सर उसका बीमार ये है कि एक औरत आदमी है, उनका थोड़ा हाथ पाँव ये गांठी में दर्द करता है, और शुगर का प्रॉब्लम है, और थायराइड का प्रॉब्लम है सर। तो उनको कौन सा मेडिसिन किस हिसाब से खिलाने से ठीक है?
आप ऐसा करना मोहनता जी, अपना जी जो बोलिए। ये है ये सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। और उनका एक बार जी मेरे को रिपोर्ट भेज देना, फिर मैं अच्छे से जो है बता पाऊंगा, ताकि उनको रिजल्ट जी आए, है जी। ना। हाँ और एक है सर, उनका बंगाईगांव, गुवाहाटी बंगाईगांव नौ ये से है आपका। उनका है कि पैरलेस में थोड़ा वो अटैक हुआ है शुगर और प्रेशर का वजह से। तो वो अभी आवाज उनका इतना क्लियर नहीं होता है, बात करने से थोड़ा खोखला, मतलब ये। हाँ, देखिए देखिए वहीं पे बात हाँ आएगा कि उनको जी शुगर था, उनको ब्लड प्रेशर था, इस कारण से उनको जो है पैरालाइज हो गया। तो वो जी क्या लेवल है शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का, वो रिपोर्ट मुझे चाहिए। उसके अनुसार फिर मैं सप्लीमेंट की डोज आपको बता पाऊंगा। जी सर। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू धन्यवाद। सो मैं मच। वही पूछने के लिए आपसे ये किया था। थैंक यू मैम। হয় হয় থেংক ইউ পিংকু মহন্ত ছাৰ। আপুনি ট্ৰেইনিং গ্ৰুপত ছাৰৰ নাম্বাৰ আছে, ছাৰে মেছেজ কৰি থাকে, নাম্বাৰটো ছেভ কৰি ল'ব। আৰু আপুনি মেছেজ আচ্ছা কৰিব পাৰিব, ৰিপৰ্টবিলাক গোটেইখিনি আপুনি পঠাই দিব পাৰিব ছাৰলৈ। হয় মেম থেংক ইউ মেম। আৰু আপোনাৰ নামটো লিখি দিব যে মই পিংকু মহন্ত ছাৰে কৈ আছো অসমৰ পৰা হয় বুলি। ছাৰক মেছেজটো প্ৰথম মই কৈ ল'ব, ছাৰেও তেতিয়া আপোনাৰ নামটো ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। ठीक मैम। হ'ব হয় मैम। ঠিক আছে, হয় थैंक यू। थैंक यू सर। और नेक्स्ट है हमारे बीच में हैंड राइज किया है मोइनाल हक सर। मोइनाल हक सर है बरपेटा से शायद है। वेलकम मोइनाल हक सर। वेलकम मैम, वेलकम। हाय मोइनाल हक सर, आपने हैंड राइज किया है, आप सर से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? मीनू मीनू दत्त मेम, अपना माइकটো মিউট কৰক। আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে অলপ পিছত কৰিব পাৰিব। হয় মইনাল হক ছাৰ, ৱেলকাম। হেল্ল' वेलकम मैम। মইনাল হক ছাৰ। মোৰ হয় হয়, মোৰ ঘৰত আপুনি প্ৰশ্ন মোৰ কৰিব বিচাৰে ছাৰৰ লগত কিবা? অ, উম, অকে মোৰ হয় মোৰ মাক মোৰ কণ্টিনিউ। মোৰ মাক শুনক, মোৰ মাকৰ তাৰমানে আগতে বডিটো ঠিকে আছিলে, গ্ৰোথ ঠিকে আছিলে, কিন্তু এতিয়া আপনার अभी जो हो रहा है, अभी आपका बॉडी का खून का बहुत कमी होता है हर टाइम। মইনাল ছাৰ, আপুনি ডিটেইলছটো হিন্দীত কৈ দিয়ক, ছাৰে তেতিয়া ভালকে আৰু বুজাই দিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ खून ডিটেইলছটো কৈ দিয়ক। खून खून का ज्यादा कमी होता है अभी। आपका भी खून का परसेंट है 9। हेलो सर। प्रॉब्लम क्या था वो बताइए आप, उनको पहले से क्या प्रॉब्लम था? पहले ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशन किया है, और अपेंडिक्स और गोल ब्लैडर का ऑपरेशन किया है। हाँ उसका हाँ बाद में तो अभी अभी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, खून कमी हो जाना, और बॉडी ग्रोथ नहीं होना, पूरा आदमी पतला हो ओके। जाना, हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर और जी। माथा उनका माथा जो माथा है, चक्कर देता है। हाँ सिर चकराता है। जी सर, उनका हम्म। गोल ब्लैडर का और अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उनके बाद उनके बॉडी में खून की कमी रहती है और उनकी कमजोरी आ गई है। इसके लिए आप अच्छा, क्या ऑपरेशन सजेस्ट कब हुआ करेंगे? है? ऑपरेशन कितना ऑपरेशन दिन हुआ पहले हुआ? अभी 10 महीना हो गया। अच्छा ठीक है, उनको आप हीमोहिम दीजिए, एक पाउच सुबह, एक पाउच शाम को, खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक। 1 घंटा बाद तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। साथ में उनको पोमेग्रेनेट जेली जेली दीजिए, अनार का जेली है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो हेमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। और साथ में उनको दीजिए मिल्क थिसल, ताकि लीवर उनका ठीक रहे। लीवर ठीक रहेगा तो 70% रोग नहीं आएंगे। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और उसी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो लीवर ठीक रहना बहुत जरूरी है। तो उनको मिल्क थिसल, पोमेग्रेनेट जेली और हीमोहिम दीजिए, तो उनका ब्लड हेमोग्लोबिन अच्छा बढ़ जाएगा। जी थैंक यू। হয় মইনাল ছাৰ, ঠিক আছে। এইকেইটা প্ৰডাক্ট আপুনি ল'ব, তেতিয়া নিশ্চয় ভাল পাব। হয় আৰু কিবা আছে? আৰু এটা আছে, হয় তাৰমানে মোৰ অকে। মাইকীৰ তাৰমানে চাষ্টত তাৰমানে টিউমাৰ নিচিনা গুটি হৈছে এটা, আৰু চকুত 2টা গুটি হৈছে। চকুত গুটি উঠিছে আৰু অ', টিউমাৰটো ক'ত হৈছে? বুকুত চেষ্ট মে। চেষ্ট মে বুকুত মানে এতিয়া আপোনাৰ ধৰক प्राइवेट पार्ट्सत रोटेट হৈছে নেকি? रोटेट वो तो पूरा रोटेट करता है, इधर एक साइड पकड़ने से वो साइड जाता है, एक साइड पकड़ने से वो साइड जाता है। लम्प्स दिख रहा है, अच्छा। हाँ, सर जी, लम उनके हाँ। उनके चेस्ट में, वाइफ के चेस्ट में लम्प्स मिला है, 2 लम्प्स है, 2টা ক'লে ন?
ना एक है, एक में एक अच्छा, ही। क्या करना पड़ेगा ना किशन मैम, जी, उसका रिपोर्ट चाहिए, बायोप्सी वगैरह कुछ हुआ है क्या? ओके उसका ओके। रिपोर्ट चाहिए। बिना रिपोर्ट के ठीक नहीं है, हालांकि हेमोहिम दे सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट आने से अच्छा रहेगा, क्योंकि बायोप्सी होने से क्लियर हो जाएगा कि वो किस टाइप का है। ओके, আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কিবা কৰিছেনে ৱাইফৰ? কৰিছো, তাৰমানে বাচ্চা बाकी আছিলে পেটত, সেইটো बाकी কাৰণে नेक्स्ट কৰিব मीटिंग में পৰা নাই। रखेंगे किशन मैम। जी जी जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगी उनका, इनसे हाँ मैं हाँ। बता देती हूँ एक बार। তো মইনুল স্যার আপুনি মেডিকেল ৰিপৰ্ট কি আছে এইটো দিব, আমি ছাৰক পঠাম, তাৰপিছত ছাৰে ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰিব। ঠিক আছে ছাৰ? ঠিক আছে। হয় হয়, ঠিক আছে, থেংক ইউ। ছাৰৰ চাগে ব্যস্ত আছে, ছাৰে এতিয়া লাষ্ট আৰু এটা কুৱেশ্যনে ল'ব পাৰিব। আমজদ अली सर सीआरपीएफ से मणिपुर से हैं। আমজদ अली सर वेलकम। হয় हाय मैम। गुड इवनिंग गोविंद सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर ठीक है, आपसे मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप में बात मैसेज किया हूँ। हाँ, आपसे तो पहले भी मैं मेरा तब बात हुआ है कई बार। हाँ कश्मीर में थे तब, अभी मैं मणिपुर में आ गया। हम्म। ठीक है सर, मेरा सवाल ऐसे है गुड सर, गुड। 55 एज है। एक जी, बंदा का मतलब सराइसिस का बीमारी चल रहा है उसको, तो उसके लिए क्या क्या प्रोवाइड किया जाए सर हमारा सप्लीमेंट? क्या 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 बीमारी चल रहा है? सराइसिस। सोराइसिस, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको आप जो नहाने के साबुन केमिकल वाले हैं वो बंद करा दीजिए। जो एटमी का बॉडी क्लींस है ना, उससे वो स्नान करें, साथ में बॉडी लोशन लगाएं, और खाने के लिए मिल्क थिसल, मोरिंगा, ओमेगा 3 और हेमोहिम ये कंटिन्यू दें, क्योंकि सोराइसिस बड़ा खतरनाक बीमारी होता है, जिद्दी बीमारी होता है, जल्दी से ठीक होता नहीं है। इसलिए मिर्ची मसाला नमक भी उनका कम से कम खाना है। अगर नमक मिर्ची ज्यादा खाएंगे तो जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो नमक मिर्ची कम करें, और हेमोहिम, ओमेगा 3, मिल्क थिसल, मोरिंगा ये कंटिन्यू खाएं, ठीक है? হয়, আমজদ अली सर শুনিছে? হেল্ল', আমজদ अली सर। হয় হয়, নিৰুপমা মেম আপোনাৰ মাইকটো অন হৈ আছে, অফ কৰিব কাইণ্ডলি। তো ছাৰে ব্যস্ত, গতিকে এতিয়া আৰু লাষ্ট মই মিনু দত্ত মেম, আপুনি মাইকটো অন কৰিছিলে, কিবা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে নেকি মেম? হেল্ল' মেম। হয় হয়, মেম আপুনি মই কিবা প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছিলো এটা। হেল্ল' মানে মেম, অ অ মই অসমীয়াতে ক'ম মোৰ কিন্তু বেমাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে আপুনি আপুনি অকমান সঁহাৰি বুজাই হয় কৰিম, হয় ছাৰো হয়, যাব অসমীয়া এক বুজি পাই ছেকেণ্ড, না নাপায়। এক অ ছেকেণ্ড। নিৰুপমা মেম আপোনাৰ স্পীকাৰটো অফ কৰি দিয়ক প্লিজ। হয়, মিনু দত্ত মেম কওকচোন। মোৰ বেমাৰৰ বিষয়ে অকমান সুধকচোন আপুনি, মই নোৱাৰিম ক'বলৈ এতিয়া, কণী ओके উঠে ओके, যে। हाँ हाँ, অ, ठीक है सर। অ। जी सर जी, हमारे बीच में मीनू दत्ता मैम है, ये इनका अस्थमा अस्थमा है। तो अस्थमा के लिए इनका प्रोडक्ट मैं दे रही थी इनको, हिमोहिम, स्पेरोलिना, मोरिंगा, शिलाजीत, आपका फिर ओमेगा 3 यूज करा रही हूँ। तो सर इनका अभी जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन बीच में उनका जर्नी में थे, जर्नी में जाने के बाद फिर उनका मतलब हवा पानी चेंज हो गया, और ज्यादा फैन का हवा ले लिया उन्होंने, तो ठंडा लग गया उनको शायद, तो इस वजह से भी होगा शायद। तो अभी उनका तबीयत फिलहाल थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है। तो अभी उनको अस्थमा से पूरा बेनिफिट के लिए हम और क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं सर? जी ठीक है मैम। हेमोहिम को 1 कप उबलते पानी में, गरम गरम पानी में मिला करके वो सुबह और शाम चाय की तरह सिप सिप करके पिएंगे। डायरेक्ट इनटेक करने की बजाय गरम पानी में मिला करके पिए। साथ में ओमेगा 3, मिल्क थिसल ये जरूर ले, और 1 घंटा सुबह शाम वॉक करके आए। वो उनके लिए वॉक करना बहुत जरूरी है। वॉक करने से हमारा लंग्स जो है वो ताकतवर बनता है, उसमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसमें आराम आएगा। और साथ में ये फूड सप्लीमेंट लें, लेकिन गर्म पानी के साथ लेंगे हिमोहिम को, ठीक है? जी जी, और थैंक यू। खाने पीने में खट्टी चीजें, ऑयली ओके चीजें बिल्कुल बंद रखे कुछ दिन के लिए, कम से कम 2 से 3 महीना।
और जब भी पिए तो हल्का लुक वार्म वाटर पिए, ठंडा पानी नहीं पीना है, लुक वार्म पानी ही पीना है। जी, बासी थैंक यू। चीजें नहीं खानी, फ्रिज की चीजें नहीं लेनी, खट्टे फल भी नहीं लेने, कुछ दिन परहेज कर दें, फिर उनको आराम अच्छा आ जाएगा। ओके, ठीक है थैंक मैम? यू। थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। जी जी, आज के लिए होगा, आप व्यस्त हैं, तो आज का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू कृष्णदत्ता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आशा सो करती हूँ मच। अगले हफ्ते हम आपका फिर से श्योर श्योर आपसे मुलाकात होगी श्योर और श्योर सभी लोगों को आपसे बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। श्योर मैम, थैंक यू। जी, बाय थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। गुड नाइट सर। हाँ